Yes. जितेंद्र कुमार, राइट? Yes, sir. सो आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में और हिंदी में? English maybe. Introduce some yourself briefly. Yes, sir. I am from Ludhiana. I am currently serving in ESIC as a upper division clerk. Previously, I have worked in State Bank of India as a junior associate. I have done my production engineering from GNDC College, Ludhiana. I want to work in the State Bank of India and serve the people. And what about your family background? My father is working in a private job in Avon Cycles as a design engineer, and my mother is a housewife with some tailor work. फर्स्ट थिंग आप मास्क का रिमूव कर लो. ओके. सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपके सीवी में देखा है, यू आर ऑलरेडी क्रैक एसबीआई जूनियर एसोसिएट एंड ओवर देयर आपने तकरीबन 1 मंथ काम किया हुआ है. एंड देन फिर व्हाट इज द रीजन फॉर दिस काइंड ऑफ शॉर्ट टेन्योर? Yes, sir. ESIC result has come in January while I was serving. So in between I was comparing both the jobs that which first was a salary comparison, then was it was the central government job. I have neglected the aspect of the career growth, which is comparatively slow in the central government job. So that's why I want to switch to So again switch to same organization. Yeah. Okay, fine. How will you justify that if we take you again into our bank, whether on critical or PO whatsoever, you will continue to stay here, and if you work here, say after 6 months, you get some, increase in salary in some other environment. We think that you will again shift. So what is the guarantee that you will continue to stick with our bank? Yes, sir. Even in my present organization, there are no competitive exam or internal promotional exams. In the banking sector, there are the CIB and the GIB exams, which will help me to increase my salary or for the further career progression. In the banking sector, SBI is the sector which gives more salary. What did you learn when you were working in this bank for over 10 months or so? I was allotted with the miscellaneous seat that was to do the miscellaneous work like doing the NEFT, RTGS and printing of the passport. That is so simple. And the other was balance transfers. So that was the learning. Although there was a achievement that I have joined on the 13th January, and within the few weeks or maybe you can say exactly it is 22nd January, I was the fastest teller who has done the work in the shortest time possible. Okay, great. ओके, तो अभी आपने बोला कि आपने जो काम किया उसमें आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में जो है सीखा है. तो आरटीजीएस और एनईएफटी में अगर किसी को चूज करना है तो वो किस चीज को चूज करेंगे पैसा ट्रांसफर करने के लिए? ये सर उस कस्टमर की डिमांड पे डिपेंड होगा कि भाई वो मतलब जैसे नेट होता है उसमें यानी कि टाइम लग जाता है, जैसे बैच बन के फिर उसकी पेमेंट होती है, और जो आरटीजीएस होता है उसका मतलब एट द टाइम जैसे हमने एंट्री डाली तो उसकी पेमेंट हो जाती है. तो ये डिपेंड करता है वो कस्टमर किस कंडीशन में आ रहा है. अगर उसको जल्दी चाहिए तो वो आरटीजीएस करवाएगा, नहीं तो नहीं. बाकी इसमें लिमिट होता है इसमें आरटीजीएस में होती है जबकि 2 लाख से ऊपर होना चाहिए अमाउंट. नेफ्ट में कोई लो लिमिट और अपर लिमिट नहीं. अच्छा, अभी आपने एक शब्द बोला है बैच. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट बैच? मतलब बैच सिस्टम में कैसे पैसा ट्रांसफर होता है, थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं एनईएफटी में?
बैंक में सर जहाँ तक मुझे पता है वो होता है कि हम यानी कि एंट्रीज के यानी कि जैसे हमारे पास कोई कस्टमर की रिक्वेस्ट आई तो हम उससे कलेक्ट करते रहते हैं। उसकी जब पेमेंट होगी जैसे ये टाइम के हिसाब से होता है, टाइम होता है जैसे 5 बजे के बाद जो माना जाता है 5 बजे के बाद सारी सेटलमेंट वो करके जाएंगे। कितने बैचेस होते हैं? अच्छा, आप जैसे बैंक में जॉब करना चाहते हो, एसबीआई में आप जॉब करना चाहते हो, तो एसबीआई के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाउ एसबीआई एसबीआई सर ये यानी कि मर्जर हुआ था, 3 बैंकों का मर्जर था। पहले बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ कैलकाटा। तो इसके बाद यानी कि इसका जो मर्ज करके इसका नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इसका जब नेशनलाइजेशन हुआ उसके बाद यानी कि इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955। ओके, तो आपने बोला एसबीआई को क्या हम नेशनलाइज्ड बैंक बोल सकते हैं? I was wrong. I want to sorry for that. It is not a nationalized bank. Only the transfer of the ownership that was in the British hands that was given to the Indian government. Okay. What is the definition of bank? Bank is a financial supermarket. As we go in the supermarket, there is everything available. In the term of in the financial supermarket, there are the insurance or any account related services. All are available at the same thing. So it is. Okay. How many types of deposit account? Deposit account are of 2 types, that are saving and second one is term deposit. Deposits and term. Okay, you are confused in this question. Okay, no problem. अच्छा, have you heard about Islamic Bank? इस्लामिक बैंक के बारे में कुछ सुना है आपने? ओके, अच्छा, आप रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में मेन डिफरेंस बता सकते हो? डिफरेंस क्या है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट सर यानी ये मॉनेटरी पॉलिसी के यानी कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं ये दोनों। तो इसमें होता है जो रेपो रेट होता है उसमें यानी कि जब बैंक अपना सीआर और एसएलआर मेंटेन करता है, अगर उसको कोई भी मनी की जरूरत होती है तो यानी कि वो आरबीआई से उधार लेता है, तो इसको हम बोल देते हैं रेपो रेट। तो इसपे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसे बोलते हैं रेपो रेट। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो यानी कि जब आरबीआई को जरूरत पड़ती है किस पैसे की तो वो बैंकों से यानी कि उधार ले लेता है, तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, तो बेसिकली यू आर फ्रॉम लुधियाना। ओके, तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं आप लुधियाना सिटी से मतलब आपका जो है स्कूलिंग वगैरह जो है आप बड़े हुए हो लुधियाना सिटी में, तो लुधियाना सिटी का जो है फॉर्मेशन जो हुआ था वो किस समय कौन से ईयर में हुआ था, या फिर ये जो शब्द लुधियाना वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड, या फिर कौन सा वंश डायनेस्टी उस समय था जिस समय लुधियाना का फॉर्म हुआ था? मतलब लुधियाना के बारे में आप ये वाला जो है नहीं आंसर। ओके, ठीक है सर, आप एक्चुअली आपकी जो +2 थी आई थिंक वो साइंस में थी। हाँ जी। उसके बाद आपने बीटेक किया, हाँ जी। तो अभी आप बैंकर और गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, फिर आपने स्विच किया। ये ट्रांसपेरेंसी कैसे रही, मतलब क्या सोच के आपने स्विच किया? ये सर एक्चुअली जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था ये लास्ट ईयर में आया था। जैसे जब हम अपनी मेजर ट्रेनिंग पे मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे थे, साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग भी चल रही थी, तब हमें बताया गया था कि कंपनीज वगैरह आती हैं, मोस्टली आईटी कंपनीज आती हैं जो कि रिक्रूट करके लेके जाती हैं। तो उसके लिए यानी कि एक टेस्ट होता है यानी कि जो आगे उनके लिए, तो उस टेस्ट की जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो इन बिटवीन पता लगा कि इसका सिलेबस यानी कि रीजनिंग क्वांट वगैरह सब यानी कि बैंकिंग से भी रिलेटेड, तब यानी कि इसकी प्रिपरेशन शुरू की। हालांकि टीसीएस वगैरह आई थी, हमने भी एग्जाम वगैरह दिए थे, लेकिन उसके हम इंटरव्यू वगैरह में नहीं बैठे, तो चलो अब इसकी प्रिपरेशन ही करेंगे बैंकिंग वाली। वन मोर थिंग कि आपने एसओ के बारे में सुना है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में, तो आप क्या सोच रहे हैं कि उसके लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए?
ये सर बैंकिंग में वो जो स्पेशलिस्ट ऑफिस है वो आईटी के रखते हैं या सीएससी के रखते हैं, हमारे प्रोडक्शन का प्रोडक्शन, ओके ओके। हाँ, आप एक और चीज है, जब आपका प्रोडक्शन है, ये शायद यहाँ पर मेंशन नहीं था, तो ये तो आपने बीटेक में, ये आपकी काफी अच्छी, अभी बहुत ट्रेंड में चल रही है, आपने जिस चीज को चुना था आई थिंक, और बहुत वो मतलब बहुत यूजफुल भी है लोग उसमें, तो आपने एक अच्छी खासी जगह पे, मतलब यूनिक आपकी चॉइस थी, वहां पर भी काफी ग्रोथ था। बट ओके, ये क्वेश्चन इसलिए बन रहा है बिकॉज इसमें मॉक में जैसे आपकी सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन इसी लेवल पे इसलिए बनेंगे, रीजन है कि आपने जो क्लर्कल का जॉब था वहां से आपने ESIC स्विच किया, देन SBI PO में एक ही चीज होता है। इसके बाद अगर आपके पास, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में जानते होंगे, अगर उसकी वैकेंसी निकलती है, ठीक है, तो जरूर आप ट्राई करेंगे। और बिकॉज इस पूरे बैंकिंग सेक्टर में ऑल्दो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है और उसमें आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी, SBI से भी ज्यादा है, बिकॉज उसकी जब पहली वैकेंसी थी आई थिंक 2008-9 के करीब उसकी पहली वैकेंसी आई थी, ही टर्म्स पे रिक्रूट करते हैं, देयर इज 80,000 85,000 की सैलरी होती है बैंक में। फिर वहां पर अगर आपकी वैकेंसी निकलती है, आप जरूर ट्राई। वो एसबीआई को पीछे नहीं छोड़ सकेगा, क्योंकि एसबीआई अगर सैलरी भी ज्यादा देता है तो साथ में अलाउंस जो होते हैं वो जबकि कोई और ज्यादा इसमें प्रोवाइड नहीं करता। करंट चेयरमैन कौन है SBI का? सर दिनेश कुमार खरा सर, उन्होंने भी एज ए DA ज्वाइन किया था और एज ए चेयरमैन तक पहुंचे हैं, एज ए हम उससे गाइडर लेके चल रहे हैं। फर्स्ट चेयरमैन कौन था? एसबीआई करंटली SBI में आप किसी के शेयर को इनटेक किया है या फिर कुछ किया है, ऐसा कुछ न्यूज में है कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले? सर जो मेरे ख्याल से है वो है कि जियो पेमेंट्स बैंक में यानी कि 30% स्टेक चल रहा है। वन मोर क्वेश्चन कि जैसे SBI के कितने ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया? अराउंड 90,000 है। एनपीए के बारे में क्या बात करते हो, डिफाइन करो जो। जैसे कोई लोन होता है, एनपीए हम किसी लोन को तब कह देते हैं यानी कि जब उसकी पेमेंट या उसकी प्रिंसिपल अमाउंट या उसका इंटरेस्ट 90 डेज तक अनपेड रहता है। अच्छा, क्लास 2 में आपका साइंस था, है ना? तो साइंस का एक बेसिक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स, इसका डिफरेंस बता सकते हो? आउट से इन जाती है, मेरे हिसाब से जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और जो सेंट्रीफ्यूगल होती है वो इनसाइड से आउटसाइड होती है, वाइस वर्सा। आई एम नॉट श्योर। अच्छा, यूपीआई किसका प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी का? एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, कब एस्टैब्लिश हुआ था? ओके, ठीक है। बिटकॉइन के बारे में क्या जानते हो आप? सर एक क्रिप्टो करेंसी है और ये कि जो उसमें मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि जिसमें यानी कि काफी साल पहले इसके ऊपर पैसा लगाया था, वो अमीर बन चुके हैं। अच्छा, मतलब सबसे उसमें अगर बिटकॉइन में पैसा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है? वीकनेसेस तो बहुत हो सकते हो कि इंटरेस्ट नहीं है। ये सर मेन है कि ये यानी कि किसी के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, मेनली ना ही अभी हमारे RBI की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन है ये इसके रिगार्डिंग। हालांकि जो अभी बजट आया है उसमें भी इन्होंने कहा कि भाई हम यानी कि अपना कोई करेंसी, डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। बिटकॉइन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ भी बजट में कुछ भी न्यूज रहा हो बिटकॉइन को लेकर, कुछ भी ये हो सकता। हाँ, एक थी
कि अगर क्रिप्टो करेंसी से जितना भी हमें इंटरेस्ट आएगा उसमें से 30% टैक्स की जरूरत एग्जैक्टली ये सुनना चाह रहा था मैं। ओके, तो आप जानते हैं बिटकॉइन, इसकी कुछ आप हिस्ट्री या कुछ ब्रीफ कर सकते हैं, अगर मतलब ये कैसे शुरू हुआ या फिर किस तरीके से? बिटकॉइन ये यानी कि जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसके बारे में बताते हैं। ये इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, उसके ऊपर ये बेस्ड है। और ये जहाँ तक मुझे पता है ये जापान से इनिशिएट हुआ था। एसबीआई ने रिसेंटली कुछ ऐप लॉन्च किए हैं ऐसा लास्ट 2 इयर्स में, तो और एसबीआई की जो मेन ऐप है हर बैंक की होती है, उस ऐप का क्या नाम है और कौन कौन और से ऐप? एसबीआई योनो है, और इसके अलावा जो पहले जो थी एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई पे, अक्सर इन सबको मर्ज करके एक एसबीआई योनो निकाल दी, जिसका नाम रखा है यू ओनली नीड वन। आपका बैंक अकाउंट किस एसबीआई किस ब्रांच में है? 674 ब्रांच है जो फाउंटेन शॉप रोड है। फाउंटेन शॉप। इसके अलावा किसी और बैंक में आपका अकाउंट है? जी सर। आपके फैमिली में किसी का दूसरा बैंक? किस बैंक? एचडीएफसी वाली। अगर हम गवर्नमेंट बैंक में किसी दूसरे बैंक में, ओके, एचडीएफसी और एसबीआई को आप किस तरह से कंपेरिजन करेंगे? जैसे दोनों ही इनकी सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स है। इसका मतलब अगर इनके ये दोनों बैंक डूब गए तो इनकी इंडिया की जीडीपी इनकी काफी इनकी उसको गिरावट आ जाएगी उसमें। और दोनों इनकी एक इनकी गवर्नमेंट ओन्ड है, दूसरा प्राइवेट। दुनिया में एसबीआई कितने नंबर पे आती है वर्ल्ड रैंकिंग में एज ए बैंक? टॉप 10 में हो। 43rd पोजीशन है। आपको मालूम है कि यहाँ पर तकरीबन कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं एसबीआई में? अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट 2 लाख 2,50,000। ओके, दिस क्वेश्चंस वाई आपसे इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज एक है आपका रूफ और जो दिखता है, बिकॉज अब जब कोई बैंक आपको रिक्रूट करेगा तो वो जानने की यह ट्राई करेगा कि एट वंस अगेन व्हाई यू आर टेकिंग दैट रीजन की ऑल्सो आप अगर देखो आप क्लर्क में थे, आप जानते हो कि विदिन 3 इयर्स आपका प्रमोशन तो होता ही एंड ऑल्सो इंटरनल। तो इस वजह से ये क्वेश्चंस आपको, बाकी तो हम अब नेक्स्ट बताएंगे आपको क्लासेस में, ठीक है सर? एफडीआई और एफपीआई क्या है ये? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है सर? इसको डिफाइन करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये सर यानी कि कोई बाहर का यानी इन्वेस्टर होते हैं, वो हमारी यानी कि कंट्री में आके कोई कंपनी खोलते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। एफपीआई ये एक कंट्री का इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्री में हो या दूसरे कंट्री में, दैट इज एफडीआई। अब एफपीआई क्या है? म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या मालूम आपको? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है क्या चीज? म्यूचुअल फंड किसको बोलते हैं? ऐसे किसी को समझाना हो। इसके बारे में सर एक लेवल आता है सब्जेक्ट टू मार्केट। आप बैंकिंग में जा रहे हो वहां पे, बिकॉज यू हैव टू डील डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, नॉट जस्ट स्टिक टू कि कासा में ही आपको स्टिक नहीं रहना है ना। एज ए पीओ ऑफिसर आप अभी जो चेयरमैन है वो भी पीओ थे एंड ऑल्सो उनकी सबसे ज्यादा सक्सेस आप जानते हो कहाँ पर उनको मिली थी? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ वो सबसे ज्यादा सक्सेस, मतलब एक जो उनकी जो पूरी ड्यूरेशन थी उसमें, दैट्स व्हाई ही प्रमोटेड। तो आपको सारे प्रोडक्ट को थोड़ा जानना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड हो सकता है आपको गाइड करना पड़े, ट्रेंड करना पड़े आपके कलीग्स को।
एसआईपी में आपने बोला 2 बैंक है, और कोई बैंक है एसआईपी में? एक सर आईसीआईसीआई। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैम? ये सर मेन जो पैसे की सप्लाई है मार्केट में उसको कंट्रोल में रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है, चलो पहले वो बताओ। इन्फ्लेशन तो आपने बोल दिया, इन्फ्लेशन कहते हैं किसको है, डिफ्लेशन किसको कहते हैं? इन्फ्लेशन सर एक ईयर की बेस ईयर से द लास्ट ईयर से हम अगर कंपैरिजन करें तो जो चीजों का प्राइसेस है उसमें इनकी कितनी बढ़ोतरी हुई है। प्राइस के साथ एक और चीज भी चाहिए ना, 2 चीजें कंपेयर करते हैं ना, एक नहीं करते ना। प्राइसेस एंड सर्विसेज, दिस इज उनका जो रेट है, द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई आता है, पैसों का वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, वो इफेक्ट है। डेफिनेशन क्या है इन्फ्लेशन का? आपका बैंकिंग में ये चीजें हैं, सारी चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। एंड आपकी पर्सनालिटी का वीकनेस क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट? कंफर्ट तो सर एक क्विक लर्नर, और सेकंड वन सर यानी कि अगर कोई मुझे रेपिटेटिव टास्क दिया जाए तो मैं उसको करने कोई ना कोई इजी वे ढूंढूंगा। व्हाट टास्क, सॉरी अगर सर कोई मुझे सेकंड आपने क्या बोला, फिर से एक बार दोहराइए। अगर कोई मुझे रेपिटेटिव टास्क दिया जाए तो मैं उसको करने का कोई ना कोई इजी वे ढूंढ लूंगा। ओके, अगर कोई नया टास्क हो आपके सामने तो सर उसके क्विक लर्निंग से सीख लूंगा। गुड। हॉबी क्या है आपकी? हॉबी सर एक कस्टमर्स के बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ, जहाँ कि उन्हें जो अप्लाई करना है वो देखता रहता हूँ। और सेकंड वन सर एक मैं नॉवेल्स भी पढ़ता रहता हूँ, नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ। एक तो नॉन फिक्शन के बारे में बताइए। हाँ सर, एक रॉबिन शर्मा की है हु विल क्राई योर लाइफ, और सेकंड वन रॉबर्ट कियोसाकी की है, उसके रिच डैड पुअर डैड। तो नॉन फिक्शन क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या मतलब आपकी क्यों इंटरेस्ट है? सर नॉन फिक्शन में इनके उन्होंने रियलिटी के बारे में बताया होता है, जो भी उनकी लाइफ की लर्निंग्स होती हैं उसके बारे में। तो सर बजाय कि हमको स्टोरीज पढ़े तो हम रियल लाइफ इवेंट्स के बारे में जान सकते हैं। ओके, करंटली किन स्टेटों में इलेक्शन होने वाला है? ये सर 5 स्टेटों में होने वाले हैं इलेक्शन, यूपी, पंजाब, मणिपुर और ठीक है सर। उत्तराखंड में गोवा